सागुणम् एषो पञ्चणमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलान् शेषव्येषि परममङ्गलम् मंगलान् शेषव्येषि Namo Mangalam Gitam Ahimsa Sanyamutavo Devamittam Namasanti Yasa Dhamme Sayamono Yahadumasa Bukhesu Vamaro Abhiyairasam Raya Bukham Gilami Soya Pinei Appayam Emae Samanamuta Yeloe Santi Sauno Vihangamabukesu Nanavate Saniraya Vayancha Vittim Labhamu Naya Goyu Amani Ahare Suriyante Ukhesu Hamarajaha Mohara Samavudha Jivavanti Anishiya Nana Pindarayanda Yena Vuchanti Shanti. बोली भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया, नमस्कार तुमको माँ जानकी, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको विश्व पिता कहाए, नमस्कार तुमको विश्व पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी,
नमस्कार खूब फूल शांति। नमस्कार तुमको आए मिल के धारक। नमस्कार तुमको आए मिल के धारक। नमस्कार तुमको भक्तों के तारक। नमस्कार तुमको भक्तों के। नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता। नमस्कार तुमको गुरु सुमति। नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता। नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता। नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी। नमस्कार तुमको हे मौनी। नमस्कार तुमको महाव्रतधारी। नमस्कार तुमको महाव्रतधारी। नमस्कार तुमको नमोकार साधक। नमस्कार तुमको नमोकार। नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक। नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक। नमस्कार तुमको देवों के देवा। नमस्कार तुमको देवों के। नमस्कार तुमको करो पार खेवा। नमस्कार तुमको करो पार खेवा। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे। नमस्कार तुमको शासन सितारे। नमस्कार तुमको शासन। नमस्कार तुमको तपोधन हमारे। नमस्कार तुमको तपोधन हमारे। नमस्कार तुमको सबके सहारे। नमस्कार तुमको सबके। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पंचम गणधराचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। पुछि सुणम समणमाणाय अगारिणोय प्रतिथ्याय सेकेयिने गन्तय्यं धम्ममाहु अणेलि संसाहु समीक्षयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूयस्य आसि जनासीनं भिक्खु जातयेनं आसूयं भूहि जानि सन्तं खेयन्नयसि कुशले महेसि अनन्तनानि अनन्तदंसि दशंसिनो चक्षुपैथि यस्य जानाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊर्ध्वं वहेयां तियं दिशासु कसाय दिथा वर्जेयपाणा से नीच नीचे समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मं संयमोदाहु से संवेदंसि अभिभूयनानि निरामगन्धे धीमा
Thiyappa Anuttare Sabba Jagansi Vidyam Gantati Te Abhayanau Se Bhui Panne Aniye Achari Ohantare Dire Ananta Chakku Anuttare Tapai Suriyeva Vairoyanindeva Pagase Anuttaram Dhammaminam Dinanam Munika Savayasu Panne Indeva Devana Mahanubhave Sasaneya Divinam Visite Se Pannaya Kaya Sagareva Mahodahiva Viyananta Pare Anaileva Kasai Mukhe Sakyeva Deva Hiva Ijoimam Seviriyanam Paripunna Virye Sudansaneva Nagsavasete Suralaeva Simudagarese Viraya Elega Gunobhave Sayam Sahasana Ujoyananam Kikandage Pandaga Vijayante Sedoyane Navanavaisase Udusito Eta Sahasamegam Utena Vechita Ivumi Vatye Jam Suryanu Pariyatayanti Sehema Vanne Vaunandaneya Jam Simraim Vedayanti Se Pavai Sadamahapagase Viraya Ikansana Mathavanne Anuttare Giri Suya Pavaduge Giri Varese Dalyeva Bhome Mahiye Majjammithiye Naginde Pannayate Surya Sundalese Evam Siriye Usaburi Vanne Manorame Joya Iyachimali Sudansana Sevajaso Girisa Pauchaima Topavayasa Etovame Samane Nae Putte Zaida Sudansana Nanasile Girivareva Nisahayanam Ruyaiva Sete Valyaetanam Tauvame Se Jagabhui Panne Munina Madhye Tamdahu Panne Anuttaram Dhamma Muiraita Anuttaram Janavaram Dhiyaim Susukha Sukham Apganda Sukham Sankhindu Eganta Vadata Anuttaragam Paramam Mahesi Savisohaita Siddhim Gate Sai Mananta Pate Nanena Silena Yadansanena Rukhe Sunaye Jasamaliva Jam Simraim Vedayanti Suvanna Vane Suvanandana Mahusetham Nanena Silena Yavui Panne Paniyam Vasadane Anuttareu Chando Vetarane Mahanubhave Gandhe Suvachandana Mahusetham Evam Muninam Apadinna Mahu Jasayambo Dahina Sete Nage Suvadaninda Mahusetham Sodaiva Rasvejayante Tavo Vahane Munivejayante Ati Suera Vanamahunaye Sihomiyanam Salilana Ganga Pakhi Suagarule Venu Deve Nivane Vadi Nihanaye Putte Joe Sunaye Javisa Sene Uphe Suvajaye Arvinda Mahu
पतिन सेठे जदंत वक्के ईसीन सेठे तवद्धमाणे सेठाम अभयपयाणम सच्चे सुवाण वज्रम वयंती कवे सुवा उत्तम बंभचेरम लोगोत्तमे समणे लाए पुते तीन सेठाल सप्तमावा सभा सुहमाव सवाण सेठा निवाण सेठा जय सब धम्मा नलाय पुता परमथि नाणी उड़ोव में दुणई विगय गेहि न सन्नीन को वही आसु पन्ने करियुम समुद्रम च महाभवोगम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु सोहम च मानम च तएव मायम लोभम च उत्तम अजठ दोषा याणिवंतारहमयसी न कुवई पावन कारवेयी क्रिया किरियां वेणयाणुवायम अन्नानियाणं पड़ियच्चठाणं से सबवायम ईवेयिता उवट्ठिये संयम दिहरायम शिवारिया इति सराई भत्तम उहाणवं दुःखकयठयाय लोकं विदितारं परं च सबं बभुवार्य सबवारं सोत्साय धम्ममर्हन्तभाष्यं समाह्यं अठपदो वसुद्धं कं सद्दहानाय जनानां इन्देव देवा हि व्यागमी सन्ति इन्देव देवा हि व्यागमी सन्ति तिवेनि आगमे तिवे पणते तंदा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे व श्री ज्ञान के विषय को अति चार लगाते मेलाऊं जम्बाइदम बच्चा मेले में नक्रम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपड़िथ्यम अकाले को सुझाव काले न को सुझाव सज्जायम 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 न सज्जायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आसाधना है भक्ति हुई तो बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कड़म। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। गणधर भगवंत सुधर्मा स्वामी अपने परमाराध्य प्रभु की महिमा बतला रहे हैं और वही लाभ आप लोग ले रहे हैं जिसमें बतलाया रुखेसु नाये जय सामली। रुखेसु रूख गांव की भाषा में वृक्षों को पेड़ों को आज भी रूख बोलते हैं ना, यानी वृक्षों के अंदर पेड़ों के अंदर सालमली नाम का जो वृक्ष है वो श्रेष्ठ है और वो इतना मनोरम है। जमसिन जहाँ पर रतिम वेदयंती अपनी क्रीड़ा के लिए खेल कूद के लिए या मनोरंजन के लिए सुवर्णा सुवर्ण नाम जाति के जो देव हैं, सुवर्ण नाम जाति के देव कहाँ पे हैं? हाँ, भवनपति भवनपति देवों के नाम आते हैं ना 20 प्रकार के वहाँ स्वर्ण कुमार, अग्नि कुमार, दिशा कुमार, उदति कुमार, पवन कुमार, ऐसे। तो जो भवनपति देवों के यानी देव हैं भवनपति देव, वो जहाँ पर जा कर के अपना मनोरंजन करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, जहाँ जा कर के जिनको वो आनंद का अनुभव लेते हैं यानी सुख की प्राप्ति होती है, सांसारिक सुख वो प्राप्त करते हैं। ऐसा वो वृक्षों के अंदर सालमली वृक्ष
उत्तम बतलाया है, श्रेष्ठ बतलाया है। क्योंकि पेड़ तो अनेक प्रकार के होते हैं, वो भी वनस्पति का ही एक भेद है। और वनस्पति कितने प्रकार की, टोटल प्रत्येक और साधारण मिला करके 24 लाख वनस्पति। हमारे जो ज्ञानी भगवंतों ने अपने ज्ञान के अंदर देख करके बतलाया है 24 लाख, अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत से श्रावक श्राविकाएं नियम लेते ना, 50 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा सब्जी का या फल फ्रूट सब मिला करके उससे ज़्यादा का पचखान। अगर सब्जी के आप नाम गिनाने बैठे, कितने गिना सकते हैं? वही 10-20 मुश्किल से, क्योंकि उपयोग में आने वाली वही चीज़ें हैं। और 50 या 100 उतना भी अगर नियम लेते हैं, मर्यादा बांधते हैं, तो बाकी के इतने लाख वनस्पति का हमारा संबंध यानी उस दोष से बच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पचखान का अपना महत्व होता है, नियम का अपना महत्व होता है। और क्वेश्चन खड़ा हो जाता कई बार, जब प्रयोग ही नहीं करते तो दोष कहाँ से लगेगा, है ना? जब उपयोग में ही नहीं लाते किसी चीज को तो उसका पाप कैसे लगेगा? मन में आ जाता है। घर में रोज चोरी थोड़ा ही होती है, फिर भी आपने बाहर जाना हो तो ताला लगा के जाते हो ना। उस समय विचार नहीं आता, अरे चोरी थोड़ा ही होती है रोज, क्यों ताला लगाएं रोज रोज, है ना? लेकिन वहां तो ताला लगाए बिना घर से बाहर, क्योंकि पता है कि भाई सुरक्षा करना व्यक्ति का अपना एक सोच है, एक तरीका है। तो ऐसे ही कर्म बंधन से बचने के लिए महापुरुषों ने पचखान, नियम, मर्यादा, जो भी बोलो आवश्यक बतलाया है कि चाहे हम उपयोग में लाएं ना लाएं। नहीं तो वो एक अपचक खानिया क्रिया आती है, 25 क्रियाओं में जो भेद आते हैं 25 क्रिया, उसमें एक अप्रत्याख्यान या अपचक खानिया क्रिया आती है कि वो दोष संसार में जितना जो कुछ है निरंतर उसका दोष लगता रहता है। जैसे पानी है, हम मर्यादा बांध लेते हैं कि दिन में इतना उपयोग करेंगे। श्रावक के 14 नियमों में सब चीजें आती हैं, आप लोग पढ़ते हो तो जितना उपयोग करते हैं उसकी मर्यादा बांध करके बाकी का अगर त्याग कर लेते हैं तो। नहीं तो जितने समुद्र, जितने सागर, जितने द्वीप, जितना पानी, जितने नदी नाले हमने कभी छुया नहीं, जिनको देखा भी नहीं, छूना तो बहुत दूर की चीज है, लेकिन फिर भी है पचक खानियां, यानी जब तक प्रत्याख्यान नहीं लेते तब तक वो है पचक खानियां क्रिया के माध्यम से दोष लगता रहता है, कर्म बंधन यानी होता रहता है। इसलिए पचखान आवश्यक होता है, मर्यादाएं आवश्यक होती हैं। तो वनस्पति अनेक प्रकार की है, पेड़ पौधे अनेक प्रकार के हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो व्यक्ति को अच्छे लगते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर सालमली वृक्ष का जिक्र किया है गणधर भगवंत ने कि वृक्षों के अंदर वो शामली जो वृक्ष है वहाँ पर वो भवनपति देवता, जिनके अब देवता जहाँ पर, अब देवता स्वयं में इतने पुण्यवान होते हैं, उनके पास इतना वैभव होता है। और प्रसंग आता है कि संसार का सारा वैभव, जितने ज्वारा जेवर ये जो कुछ भी हो, सारा का सारा भी मिला दिया जाए तो देवता के एक रतन का, एक मोती का भी मुकाबला। इतना महत्वपूर्ण, यानी इतना वैभव उन लोगों के पास होता है, इतने वो संपन्न होते हैं सांसारिक सुख की अपेक्षा। अब वो स्वयं कहीं पर जाते हैं तो वो कितना श्रेष्ठ होगा। तो ऐसे ही कि भाई उनको स्वयं, क्योंकि उनके स्वयं के बाग बगीचे, स्वयं के उद्यान, स्वयं के, आज की भाषा में बोले बावड़ियाँ, पहले बावड़ी बोलते थे, आजकल स्विमिंग पूल, क्या क्या समय बदलता है भाषा। उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी
परिवर्तन के लिए। बाहर जाता है व्यक्ति तो किस लिए जाता है? परिवर्तन के लिए। अरे रहते रहते बहुत दिन हो गए, चलो कहीं घूम कर के आए। तो वो भी अपने मनोरंजन के लिए ऐसी जगह पर जाते हैं, उस शामली वृक्ष के पास जा करके जिनको अच्छा लगता है, ऐसा वो शामली वृक्ष श्रेष्ठ बतलाया गया है, जहाँ जा करके उनको संसार के सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि हर व्यक्ति या हर प्राणी, हर जीव क्या चाहता है? सुख, मिले ना मिले, काम वैसे हो ना हो, लेकिन चाहता क्या है? कोई दुख नहीं चाहता, हर कोई सुख चाहता है। एक महात्मा के पास एक नौजवान बैठा हुआ था, उन्होंने देखा कुछ परेशान दिखता है, या पूछ लिया क्या कोई दुख है क्या? उन्होंने कहा महाराज दुख तो कोई नहीं है। उन्होंने कहा फिर? कि सुख भी कोई नहीं है। दुख नहीं है तो सुख भी कुछ नहीं है, होता है दुनिया में। उन्होंने कहा दुखी नहीं हो तो सुखी भी नहीं हूं। अब सुख भी ना हो, दुख भी ना हो, एक दृष्टि से देखो तो बड़ी अलग स्थिति है। लेकिन बोलने के लिए बेशक बोल दे। उन्होंने कहा क्यों परेशान हो फिर? उन्होंने कहा परेशान है, कुछ है ही नहीं। उसने कहा अच्छा, संसार का अभाव है यानी? हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन का टाइम दे रहा हूं, तेरे को जो चाहिए वो लिस्ट बना करके ले आना। क्या कहा? जो तेरी इच्छा हो, जो तेरे को जरूरत हो, या जो तू चाहता हो, लिस्ट बना करके ले आना। ऐसा कोई महात्मा मिल जाए, हा? ऐसा कोई गुरु मिल जाए, है ना, कितना अच्छा हो, है ना, फिर लोगों को बुलाने की जरूरत ही ना पड़े। तो उन्हें कहा लिस्ट बना करके ले आना। अब उसने बड़ा सोच समझ करके लिस्ट बनाई। अगले दिन आकर के वो कागज उनको थमा दिया। हाँ, अब लिस्ट में संसारी जीव क्या लिखेगा? अपने जो भी साधन चाहिए उसको उसने लिखा, धन, मकान, जेवर, पत्नी, ये वो क्या क्या, कार, हैं, जो जो याद आया सब उसने लिख दिया। महात्मा ने पढ़ा, उन्होंने कहा तुमने लिस्ट तो बड़ी अच्छी तैयार की है। इस संसार की सुविधाएं पाने के लिए तुमने लिस्ट तैयार कर ली है, लेकिन इसमें एक चीज छूट गई है तुम्हारे लिए। अब उसने तो बड़ा सोच करके, इतना टाइम मिला था एक दिन का, उन्होंने कहा महाराज बहुत सोच समझ के तैयार किए, क्या छूट गया? उन्होंने कहा तुमने इतना कुछ लिख दिया है, लेकिन एक चीज इसमें छूट गई है। उन्होंने कहा क्या छूटा? कि इसमें तुमने संसार की सब सुविधाएं लिख दी, मकान चाहिए, धन चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, लेकिन तुमने ये नहीं लिखा कि शांति चाहिए। हाँ, क्या नहीं लिखा? हाँ, अच्छा तो उसने कहा हाँ महाराज ये तो गलती हो गई, अभी लिख देता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जिस साइड में लिस्ट लिखी हुई ना उसकी दूसरी साइड में लिख। उसकी साइड में नहीं लिखना जहाँ पर ये सारी लिस्ट है, शांति लिखना। तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जहाँ ये चीज़ें रहेंगी वहाँ शांति होगी कहाँ से? जहाँ ये संसार के सब झमेले रहेंगे तो शांति मिलेगी कहाँ से? शांति तो तभी मिलेगी जब सब इन झंझटों से छुटकारा पाएगा, इनसे मुक्ति पाएगा, तभी जाकर के शांति मिलेगी। तो अब संसार में रहते हुए सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है। ये जो साधन है ये सुविधाएं दे सकते हैं, जीने के लिए एक साधन, सुविधाएं हैं, थोड़ी सुविधाएं हो जाती हैं व्यक्ति को उससे, लेकिन मन की शांति वो नहीं मिल सकती। वो तो व्यक्ति को आत्म साधना से ही मिलती है। महापुरुषों ने जीवन भर यही किया है, इतनी साधना की है, सब कुछ छोड़ा है, जंगलों में गए, कहाँ कहाँ गए, तब जा कर के वो शांति प्राप्त होती है, ऐसे प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे ही उन श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा बतलाए हुए वचन, तो कहा कि सालमली वृक्ष
पेड़ों में, रुखों में यानी वृक्षों में श्रेष्ठ है, जहाँ पर स्वर्ण कुमार आदि भवनपति देवता जाग पर करके अपना मनोरंजन करते हैं। और वनेश हुआ, दूसरी लाइन में बतलाया कि वनेश हुआ, वनों के अंदर, नंदन माहु सेठम, नंदन जो उपवन है सुमेरु पर्वत पर, जैसे पहले भी जिसका जिक्र आया है, तो नंदन नाम का जो उपवन है यानी जो बगीचा है, वन यानी यहाँ उपवन है, तो ऐसा जो नंदन नाम का उपवन है वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर नीचे तो वो भुवनपति देव जाते हैं, ऊपर वो वैमानिक देव अपने मनोरंजन के लिए, पर्यटन के लिए, क्रीड़ा के लिए, खेल कूद के लिए नंदन वन के अंदर जा करके उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो वनेश हुआ यानी वनों में नंदन वन सबसे श्रेष्ठ है। और इसी तरह से नाणेन शीलेन, ज्ञान और आचरण, कल भी जिसका जिक्र किया था, शील का मतलब आचरण, ज्ञान और शील के अंदर भगवान महावीर स्वामी सबसे श्रेष्ठ हैं। भूई पन्ने यानी उनकी भूति, प्रज्ञ यानी बुद्धिमान, आजकल एक शब्द होता है ना बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ बुद्धि वाले को। वर्तमान के व्यक्ति से पूछा बुद्धिजीवी किसको बोलते हैं, कि जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पैदा हो गए हों ना। भाषा है ये, किधर भी घुमा सकते हैं। तो महापुरुषों की यानी अपने तीर्थंकर आराध्यों की एक गुणानुवाद श्रृंखला चल रही है, आप लोग लाभ ले रहे हैं। आगे समय के अनुसार प्रसंग को बढ़ाएंगे। और पूज्य गुरुदेव की पावन वाणी हमारे समक्ष आ रही है। बोलिए भगवान महावीर। चातुर्मास कल्प में प्रसंग चल रहा है। पितृपक्ष का और उसके साथ साथ अब नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। पंजाब परंपरा के महानतम आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज साहब, जो राम बख्श जी महाराज साहब के स्वर्गवास के बाद पंजाब परंपरा के आचार्य चुने गए, आचार्य पद पर स्थापित किए गए। क्योंकि राम बख्श जी महाराज साहब, उनका कार्यकाल सिर्फ 22 दिन का रहा, 22 दिन तक आचार्य रहे। उसके बाद ही संथारा पूर्वक उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। उसके अनंतर मोतीराम जी महाराज साहब आचार्य पद के ऊपर प्रतिष्ठित होते हैं। इधर प्रसंग चल रहा है सोहनलाल जी महाराज साहब का। उनकी दीक्षा हो चुकी थी तब भी, क्योंकि अमर सिंह जी महाराज साहब से उन्होंने भगवती सूत्र की वाचनी ली थी।
बड़े भव्य दिव्य आत्मा थे। एक बार आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब और पूज्य सोनलाल जी महाराज साहब एक जगह बैठे हुए थे। उस समय आचार्य मोतीलाल जी महाराज साहब ने कहा, सोन, आपको सभी प्रकार की विद्याओं के अंदर पारंगतता है, क्योंकि वो चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति आदि ग्रंथों के अंदर पारंगत ज्ञान उनको था। ज्योतिष के महापंडित थे वो, 32 आगमों के ज्ञाता थे, बचपन से ही अद्भुत बुद्धि के धारक थे। छोटी उम्र में बहुत कुछ उन्होंने कर लिया था और 22 वर्ष की उम्र में उनकी सगाई हुई थी। 27वें वर्ष के अंदर दीक्षा धारण की थी। मोतीराम जी महाराज साहब कहने लगे, देखो, हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल हमारे जैन समाज के अंदर संवत्सरी को लेकर के झगड़े होते हैं कि संवत्सरी कब करना, सावन में करना या भादव में करना, पहले दिन करना है या 2 दिन में बाद के दिन में करना है। कुछ समय व्यतीत होता है, फिर संवत्सरी का झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि बीच में लोंद का महीना आ जाता है। लोंद का महीना आ जाने से वो 12 महीने की बजाय 13 महीने हो जाते हैं, तिथियां गड़बड़ हो जाती हैं। और ये समस्या हर तीसरे चौथे साल समाज को इस घटना से गुजरना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैन ज्योतिष का अलग तरीके से जो निर्माण हो और उसको इस तरह से तैयार किया जाए, ये होने वाला संवत्सरी आदि का जो मतभेद है ये सब समाप्त हो जाए। और बहुत बार पक्षियों का प्रतिक्रमण लेकर के भी ऐसा ही होता है, संवत्सरी के प्रतिक्रमण को लेकर के होता है, चौमासी प्रतिक्रमण को लेकर के होता है, आज मनाना या कल मनाना इसका रहता है। तो मोतीराम जी महाराज साहब ने कहा, आप जैसे महान विद्वान हैं ज्योतिष शास्त्र के, तो आप ऐसा प्रयत्न करो ये सारे उआप हो, सारे के सारे समाप्त हो जाएं और एक जैन पंचांग, अपना पंचांग हो, दूसरे पंडित वगैरह के पंचांग के ऊपर अपने को आश्रित रहने की जरूरत न पड़े, क्योंकि हमारा जो पंचांग है वो सब सनातन ज्योतिष के आधार पर हमारे को चलना पड़ता है। मेरी हार्दिक भावना है इसके अंदर कुछ न कुछ काम किया जाए। तो उन्होंने कहा, भाई जो भी अपनी समस्या थी उन्होंने बतलाया, इस काम को करने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब ने कहा, वो सारी सुविधा आपको हम देंगे। एक जगह आप रह सकते हैं, एक थानक में रह सकते हैं, या तब तक के लिए कोई और जो साधन की आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन ये कर लें। तो सारा काम छोड़ करके सोनलाल जी महाराज साहब जैन पंचांग के निर्माण के अंदर लगे, उनको बनाने में लगे, उनका शोध करने में लगे। और पहले वो एकांतर तपस्या करते थे और फिर उन्होंने बेले बेले तपस्या करना प्रारंभ किया। ऐसे लंबी उनकी तपस्या की श्रृंखला भी चलती रही। शास्त्रों का अध्ययन करना, उनका सारा हिसाब किताब लगाना, दूसरे ज्योतिष ग्रंथों से उसका मिलान करना, और सारी रात बैठ करके वो आकाश में तारों की गणना करते थे। जिससे जो सिद्धांत हमारे हैं और जो आकाश चक्र के अंदर जो होता है
उसका मिलान किया जा सके। और एक रात को अगर बादल आ गए, उस दिन उनका जो अध्ययन करना था नहीं हो पाया, तो फिर साल भर के बाद वही दिन आएगा, तब जाकर के उसका अध्ययन करना पड़ता था। क्योंकि एक दिन निकल गया तो फिर वापिस तो साल भर में आएगा ना। ऐसे महीने महीने के अंदर होते थे तिथियों के निश्चित करने में। तो ये आचार्य सोनलाल जी महाराज साहब उसी बीच में जो युवाचार्य बने, उसी काम के अंदर वो लगे रहे और 22 वर्ष तक उन्होंने इस कार्य के लिए मेहनत किया। 22 वर्ष तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वर्ष 2 वर्ष नहीं, इस शोध कार्य को संपन्न करने के लिए, इस जैन ज्योतिष के निर्माण के लिए, ये हमारा मतभेद है ये दूर हो उसके लिए कि चतुर्मास हमारा आगे पीछे बैठता है, संवत्सरी आगे पीछे होती है, तिथियों में गड़बड़ सड़बड़ वगैरह हो जाता है, कभी कोई आगे करता है कभी पीछे करता है। छोटा सा हमारा समाज है और समर्थ है, अपना जैन सूत्र हैं, जैन सूत्रों के अंदर पूरी तरह से जैन ज्योतिष उसके अंदर विद्यमान है। तो हमारे को दूसरे के आधार पर क्यों चलना, हम जो अपना ही जो है उसको स्वीकार तैयार करते हैं। उस हिसाब से इस शोध ग्रंथ को तैयार करने में, इस जैन पंचांग को तैयार करने में प्रधानाचार्य सोनलाल जी महाराज साहब को 22 वर्ष तक उनको जो मेहनत करनी पड़ेगी। रात भर जगना, दिन भर शास्त्रों को पढ़ के उसका मिलान करना, विद्वानों से उसमें कोई समाधान नहीं होता है तो बातचीत वगैरह करना, जो भी उसमें सहयोग दे सकते थे उनका संपर्क करना, कोई विद्वान लोग थे, पंडित लोग थे तो उनको बुलाना, संत थे तो उनके साथ कोई संवाद वगैरह करना। ऐसा करके 22 वर्ष तक समय को खपा करके उन्होंने 18,000 वर्ष का जैन पंचांग बनाया। 18,000 वर्ष में पूरे आरे, पूरा आरा, ये पूरा चौथा आरा समाप्त हो, जब तक जैन धर्म का अस्तित्व रहे तब तक के लिए उन्होंने जैन पंचांग का निर्माण किया। तो ऐसे अद्भुत आत्मा थे, ऐसा ज्ञान था उनको, इतना शोध करने वाले थे, इतना विचार करने वाले थे। चेहरा देख करके सब कुछ बता देते थे, आकाश के तारों की गणना देख करके सब कुछ बता देते थे। अद्भुत ज्योतिष का उनको ज्ञान था और पता नहीं कब उन्होंने ये सब ज्ञान प्राप्त किया था, ये लोगों को भी पता नहीं लगता था। सोनलाल ने ये सब अध्ययन कब किया और कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किया। तो उन्होंने 22 वर्षों तक लगा करके 18,000 वर्ष तक का जैन पंचांग तैयार किया। और जिस समय जैन पंचांग तैयार किया तो उन्होंने संघ को सौंपा, जो पंजाब प्रांतीय संघ था, उस समय का जो संप्रदाय था उनके हाथ में सौंपा उसको। और फिर उसके लिए बहुत से जो विद्वान संत वगैरह थे या विद्वान लोग थे उनके पास भेजा, भाई इसमें कोई कमी बेसी हो तो आप निकाल करके बताओ। तो कोई कमी बेसी उसके अंदर निकालने की किसी के अंदर ताकत नहीं। उन्होंने इतना बड़ा शोध किया था, इतनी मेहनत कौन करे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आजकल जो हमारा चतुर्मास बैठता है उसमें 15-20 दिन का फर्क पड़ता था। उठने में भी जल्दी उठता था, बैठने में भी जल्दी बैठता था। और लोंद का महीना तो 21,000 वर्ष तक था ही नहीं। 18,000 वर्ष का पंचांग बनाया, एक भी वर्ष ऐसा नहीं था जिसमें लोंद का महीना आ जाए, मैंने 2-2 भादव हो जाए, 2-2 सावन हो जाए, 2-2 आषाढ़ वगैरह हो जाए, उसमें आगे पीछे हो जाए, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं था।
उनकी विद्वत्ता थी, उनका ज्ञान था, शास्त्र सम्मत था। उन्होंने शिव शास्त्रों के आधार पर नहीं किया था, उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के चालों को माप करके ये अध्ययन किया था कि आज जो है नक्षत्रों का चाल इस प्रकार से है, ग्रहों का चाल इस प्रकार से है, और इतने हजार वर्ष के बाद ये चालों के अंदर ऐसा फर्क पड़ जाता है। जैसे 2500 वर्ष पहले जो चाल था, वो 2500 वर्ष पहले उस चाल में ऐसा फर्क पड़ जाता है। ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, सारा उन्होंने शोध किया हुआ था। और जिस समय उस समय आचार्य सोनलाल जी महाराज साहब आचार्य बन चुके थे, मोतीराम जी महाराज साहब का देवलोक हो चुका था, फिर बाद में ये जब उनका कार्य संपन्न हुआ तब, और उपाध्याय पद के ऊपर आत्माराम जी महाराज साहब विराजमान थे। तो सोनलाल जी महाराज साहब ने कहा, आत्माराम जी महाराज साहब से कहा, वे सम्मेलन बुला लो और सबको बुला करके फिर पूछो इसको स्वीकार करें या इसको चालू करना है, नहीं करना है, कब से करना है। तो आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने निवेदन किया, भगवान आप पंजाब परंपरा के आचार्य हैं, वैसे प्रधानाचार्य हैं, सब लोग आपकी बात को मानते हैं, आपसे आगे होने में किसी की ताकत नहीं है, और मैं उपाध्याय हूँ, और उपाध्याय होने के नाते पूरे संघ की तरफ से विनती करता हूँ कि आप इस पंचांग को प्रारंभ कर दें। अब प्रयोग करेंगे, प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। तो आत्माराम जी महाराज साहब ने आदेश निकाला, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने संघ को प्रेरणा दी और कहा, जो आचार्य इसको बनाने वाले उपाध्याय में बैठा हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, फिर और इसमें सोचने विचारने की क्या बात है। और किसी से भी पूछेंगे, किसी ने एक नुक्ता तक उसके अंदर अगड़ बगड़ तो करना नहीं है, तो इसलिए उसको लागू कर दिया। और लागू कर दिया तो 15 दिन पहले ही चतुर्मास शुरू हो जाता था, 15 दिन पहले ही बैठ जाता था, क्योंकि 2500 वर्ष के अंदर इतना परिवर्तन हो गया है। ये सब उन्होंने सिद्ध किया हुआ था पूरी तरह से। अब जिस समय ये लागू हुआ तो ऑटोमेटिक जो है एक प्रसिद्धि उनकी थी भी, आचार्य सोनलाल जी महाराज साहब ने इतनी बड़ी चीज को बनाया, 18,000 वर्ष का जो पंचांग बनाया, पूरे आरे तक यही पंचांग चलता रहेगा। तो घर के अंदर अपने ही जो है संप्रदाय में, अपनी परंपरा के अंदर एक ईर्ष्या पैदा हो गई कि सिर्फ इनका ही नाम होता रहेगा, इनकी यशगाथा गाई जाती रहेगी, ये तो ठीक नहीं है। इसलिए वो परंपरा और पत्री से हम चतुर्मास करें या परंपरा से करें, ये थोड़ा रगड़ा झगड़ा शुरू हो गया। तो कहने लगे, पत्री जब बनाई है, 18,000 वर्ष की पत्री बनी है, तो उसी के आधार पर करेंगे। लेकिन कुछ संतों ने कहा, नहीं, हम तो जैसे परंपरा से चल रहा उसी के अनुसार करेंगे, इसके अनुसार नहीं करेंगे। भाई यहाँ से फिर थोड़ा परेशानी का काम आगे बढ़ता चला गया। तो दुनिया के अंदर एक तो अद्भुत चीज मिलना, ऐसे शोधपूर्ण चीज को मिलना, एक ऐतिहासिक तथ्य का मिलना, ये बड़ा कठिन काम होता है, और उसको स्वीकार करना और ज्यादा कठिन काम होता है। आदमी बड़े मुश्किल से धन कमाता है, लेकिन धन कमाने में परेशानी होती है, फिर उसकी सुरक्षा करने में और ज्यादा परेशानी होती है, और उसका उपयोग करने में और ज्यादा उसको दिमाग लगाना पड़ता है। सिर्फ कमाने से तो कुछ होता नहीं, सिर्फ मिलने से तो कुछ होता नहीं। परिवार मिलता है, लेकिन परिवार को मेंटेन रख करके आगे बढ़ना और कठिन काम होता है। तो दुनिया के अंदर ऐसा ही है, बहुत बार बहुत सी चीजें अद्भुत मिलती हैं, लेकिन उनको संभाल करके रखना, उसका सदुपयोग करना, ये पुण्यशाली भाग्यशाली आत्माओं का काम होता है। और मनुष्य जीवन इसी तरह से न मालूम कितने लोगों को मिला हुआ है, लेकिन लोग उसका उपयोग जैसे करना है तो बहुत कम करते हैं।
जबकि दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हैं, ऐसे ऐसे दृश्य हैं जिनको देख करके लगता है कि ये नरक स्वर्ग इस दुनिया के अंदर ही है, इसके अलावा कहीं नरक स्वर्ग है ही नहीं शायद। इतने इतने कष्ट जो होते हैं, इतने अन्याय अत्याचार होते हैं, इतनी बुरी बुरी दुर्घटनाएं घटती हैं दुनिया के अंदर, इतने क्रूर से क्रूर कर्म होते हैं। अगर उन दृश्यों को देखो तो आदमी सोचा इससे अलग नरक होगा क्या, आदमी ये सोचता है। और ऐसे वातावरण के अंदर अगर हम लोग ठीक ठाक हैं, आनंद मंगल में हैं, सुख शांति में हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, तो इससे बढ़कर के स्वर्ग भी क्या हो सकता है? इससे बढ़कर के अगर आदमी इस दुनिया को देखे, दुनिया के अंदर जो दुर्घटनाओं को देखे, जो अन्याय अत्याचार को देखो, तो उनको अगर देखो और अपनी तरफ देखो तो आदमी को यहीं पर नरक नजर आता है, यहीं पर स्वर्ग क्या करता है नजर आता है। कि अगर उन सारी तकलीफों से अगर हम बचे हुए हैं, वो सारी तकलीफें हमारे आसपास में नहीं है, तो इससे बढ़कर के और स्वर्ग क्या हो सकता है? तो ये समझने वाली बात है। और फिर ये समझते हैं भाई हमारे को इतना कुछ सब कुछ मिला हुआ है, जबकि जिसके लिए दुनिया के लोग तरसते हैं, तो इंसान कुछ न कुछ जितना भी हो सके मन से, वचन से, काय से, पुण्यवानी का कुछ न कुछ काम कर सकता है, धर्म ध्यान कर सकता है, नाम स्मरण कर सकता है, भजन पाठ कर सकता है। चलो भाई पुण्यवानी से हमारे को मिला है तो उसका सदुपयोग करें, और वही सदुपयोग करते हैं तो वही पुण्य की वैभव, पुण्य की दौलत जन्मों जन्मों तक हमारे जीवन के अंदर चलती है। वरना आजकल इतने दर्दनाक घटनाएं होती हैं, इतने दर्दनाक हिंसा दुनिया के अंदर होती है, और कभी उसकी झलक भी अगर देखो ना, आत्मा कांप उठती है। अरे कहाँ, कैसी दुनिया के अंदर हम लोग जी रहे हैं। तो अगर ऐसे अगर सोचते हैं, सोच करके अपने को जो सुख मिला है, अपने को अनुकूलता मिली है, अपने को सभी प्रकार की उन तकलीफों से अलग जीने का मौका मिला है, ऐसा समाज मिला है, ऐसा परिवार मिला है, ऐसे संस्कार मिले हैं, तो हमारे से सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? बंधुओं, अगर 2 मिनट के लिए इंसान बनारस के अंदर जो कर्णिका घाट है उसको अगर देख ले, उस घाट में दुनिया भर के मुर्दे जाते हैं। लोग सोचते हैं वहां मरेंगे तो सीधे स्वर्ग के अंदर चले जाएंगे। क्या दुर्गति होती है वहां पर मुर्दों की, उनको जलाने की। शरीर के ऊपर कपड़े नहीं है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, बुरा हाल है। वो दृश्य जो रात दिन का इंसान देखता है, वो देखता है तो लगता है अरे क्या है दुनिया के अंदर, क्या चीज है, कैसे कैसे तकलीफ है। और आजकल के कत्ल खानों को देखो, पहले तो पशुओं को भी लोग मार देते थे, गला काट दिया, मार दिया, थोड़ी देर में मर गया, फिर जो भी करना हो कर लो। अब तो जिंदे पशुओं को क्रेशर के अंदर डाल देते, वो क्रेशर घूमता रहता है और जिंदे पशु कटते रहते हैं, कटते रहते हैं, तड़फ तड़फ करके मरते रहते हैं, और कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। मुंह बंधा हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो मिशन में जैसे ले गए वैसे उठा करके उनको डाल देते हैं, और जिंदे ही उनको क्रैश करके एक एक अंग बोटी बोटी काट करके उनको जिंदे काट करके खत्म कर देते हैं। अब चाहे जलचरों को देखो, खेचरों को देखो, पशु पक्षियों को देखो, आजकल कितने पशुओं को पाल पाल करके कितनी बुरी तरह से मारा जाता है, उस नरक को देखो। आदमी सोचता है अगर थोड़ी देर देख ले तो ये लगता है भाई इससे ज्यादा तकलीफ नरक में क्या होती होगी जो आज दुनिया के अंदर होती है। आज के लोग जिस ढंग से मारते काटते हैं, जिस ढंग से क्रूर काम करते हैं, वो दृश्य आदमी देखे तो लगता है भाई इससे बढ़कर के नरक क्या हो सकता है। और उन सब से अगर हम अलग हैं, उन सब का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है, अगर हम उससे बिल्कुल बचे हुए हैं, तो ऐसा लगता है इससे बढ़कर के स्वर्ग क्या हो सकता है।
इससे बढ़कर के जीवन की उपलब्धि क्या हो सकती है? हमारा सुख इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है? और ऐसा मौका मिला है, चांस मिला है, तो इसका सदुपयोग हमारे को हर पल हर क्षण करना चाहिए। ये भाव अगर मन के अंदर आते हैं और कुछ न कुछ कर गुजरने का प्रयत्न करते हैं, तो यही पुण्यवानी जन्मों जन्मों तक साथ में जाने वाली होती है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का अगर किसी भाई बहन